is worth 55 lakh rupees for the cat aspirants and other management aspirants every Sunday. That is Saga 60, right? That is Saga 60 is the code. Use this code, enroll in the scholarship, and have the fantastic weekend every Sunday at 12 p.m. And let us go for one more question. Oh my god, see again one more question with the progression. So this is the third question for the progression, right? Third question for the progression. Hmm? इसका आंसर तो मैंने अपनी क्लास में कितनी बार बताया, ऐसा क्वेश्चन हमने कितनी बार किया हुआ क्लास में। ऐसा क्वेश्चन हमने कितनी बार किया हुआ क्लास के अंदर। तो शॉर्टकट भी बताया मैंने, इसका शॉर्टकट मैंने बहुत बार बताया है, राइट? इसका शॉर्टकट, तेरे से शॉर्टकट। सी मैंने इसका शॉर्टकट बताया हुआ है। सी A1 से लेके AP में है। सो मैंने क्या बोला है, द फाइनल समेशन, राइट? इसका समेशन इज इक्वल टू व्हाट? तो टेक द लास्ट टर्म अंडर रूट AN प्लस 1, राइट? एंड माइनस माइनस प्लस टेक द फर्स्ट टर्म, यस, ओके। एंड ऊपर टेक दोनों का डिफरेंस, दैट इज n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है? So n plus 1 minus 1 gone, that is n upon under root a n plus 1 plus under root a1. That's simple. This is the answer. This is the shortcut. मैंने बताया है, like take the blindly take the last term and first term, नीचे दोनों का addition and उन दोनों के terms का difference ऊपर. That is your answer. Believe me, this is the shortcut for the question. लॉन्ग कट बहुत है जो हमने 11-12 में प्रूव किया हुआ है, बट हमको प्रूव नहीं चाहिए, हमको शॉर्टकट चाहिए, हमको फटाक से आंसर चाहिए, राइट? है क्या नहीं? एंड दिस वन इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑन योर स्क्रीन। यस, जन, ओके। स्टैटिस्टिक क्या बोला? AB is the diameter of the circle of radius 5 centimeter, okay, and P and Q be the 2 points on the circle so that the length of PB is 6 centimeter. So first of all, let us draw something. Let us draw something that is a circle, right? तो हमको बोला गया है कि AB is the diameter, तो AB is the diameter, ठीक है? डायमीटर कितना है? 10 है,
diameter कितना 10. So P and Q are the points on the circle such that the length of PB is 6. Let us join them. Fine, let us join them. So PB is 6 हमको बोला गया है. Obviously हमको पता है कि diameter से हम लोग कोई भी एंगल खींचते हैं तो that angle is 90 degree. That angle is 90 degree है ना. तो मुझे बताओ कि what is the triangle? Triplet 3, 4 and 5 है कि नहीं? 6, 8 and 10. So this is 6, this is 10, this must be 8. Obviously बात right. And the length of AP is twice the AQ. So AP is twice the AQ. That means this is 4 and this is 4. Yes or no? ठीक है. Then the length in centimeter of QB is how much? So QB is how much? बताओ. तो QB कितना आ जाएगा? What is my QB? That is equal to 10 square minus 4 square according to Pythagoras. Again, this is right angle triangle. है कि नहीं? So it is 100 minus 16. So that is under root of 84. So 9 का square is 81. So under root of 84 is how much? Something greater than 9. So that is 9.1. Yes or no? That is 9.1. Obviously very easy, right? And one more question from ratio and proportion. See, again arithmetic question. Again one arithmetic question. लगाओ दिमाग फिर से घुमाओ खोपड़ी. Can we go for the question? Yes. Can we go for the question? So let's have a look. क्या बोला है? Amla, Bina, and Gori invest money in this in fixed deposits having the respective annual rates at this. ठीक है? So Amla, Bina, and Gori investment and interest, right? So investment कितना है? 3:4:5 and interest rate is how much? 6:5:4 है कि नहीं? Then what is the total in interest income after a year if Bina's interest income exceeds Amla by 250 है ना? So मतलब कि बिना की इंटरेस्ट इनकम कितना है? आमला से 250 ज्यादा. ठीक है? बिना की इंटरेस्ट इनकम कितनी है? आमला से 250 ज्यादा. ठीक है. अब मुझे बताओ कि जितना अमाउंट ज्यादा उतना इंटरेस्ट ज्यादा है कि नहीं? फाइन है कि नहीं? तो इंटरेस्ट इनकम कितनी हो जाएगी बताओ. तो यहां से इंटरेस्ट इनकम कितनी हो? 6×3=18:5 हो जाए 20. इसमें बोल सकता हूँ 5/20 है ना? बोल सकते नहीं बोल सकते? ठीक है, बोल सकते हैं. तो हमको ये पता है कि बिना के कितनी होगी 20x, आमला के कितनी होगी 18x प्लस 250 दैट इज 2x इक्वल टू 250. तो x इज इक्वल टू हाउ मच 125 है कि नहीं? x इक्वल टू हाउ मच 125. ठीक है. व्हाट इज दैट टोटल इंटरेस्ट इनकम? टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 20, 20, 40 एंड 18 58 है कि नहीं? इट इज इक्वल टू 58x है कि नहीं? 58x. so that means कि how much? yes total interest. अच्छा ओके फाइन 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 जस्ट अ सेकंड. तो इंटरेस्ट इनकम पूछा है ना? फाइन. सो व्हाट इज टोटल इंटरेस्ट इनकम बताओ. तो अगर ये 18:20:20 का रेशियो है सो कैन वी कट इट डाउन टू 9, 10 and 10 that is equal to how much? 29. Okay, 29. So 29 into 125, right?
29 into 125, that is equal to how much? 7250, right? That is equal to how much? 7250. Yes or no? Yes, and one more exponent question on your screen. One more exponent question on your screen, and very simple question. Done. Yes, can we done? M और N आर इंटीजर्स, देन M की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सिंपली निकल जाएगी। सबको तुमको 2 और 3 की पावर में दिख रहा है ना? सबको तुमको 2 और 3 की पावर में दिख रहा है, तो 2 और 3 की पावर्स निकालो एंड इक्वेट करो पावर्स को। तो 2 और 3 की पावर्स में ला दो और इक्वेट कर दो सी। सो 2 इज टू कितना हो जाएगा? दिस इज 19/2। यहाँ पे कितना ही है? 2 का स्क्वायर होगा, मतलब 2 is to 4। इधर से 2 is to 3n आ जाएगा, है ना? 3n हो जाएगा, इधर से 2 is to 3n, 2 का क्यूब दैट इज 3n, राइट ना? 2 का क्यूब इंटू n दैट इज 3n, क्लियर? इंटू 3 हाउ मच? 3 4 एक यहाँ पे है, 3 का स्क्वायर मतलब कि 2m यहाँ पे है, ठीक है, एंड नाउ दैट इज इक्वल टू 3 ये n यहाँ पे है, ठीक है। 3 और कहीं से आएगा? यहाँ से तो नहीं आएगा। 64 से 3 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। सो सब बाकी सब क्या देंगे? 2, दैट इज 2 4m। अब 64 क्या होता है बताओ मुझे? व्हाट इज माई 64? 64 क्या होता है? 2 6। 2 6 is 64 एंड ये 1/4, दैट इज 2 3/2, तो +3/2। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, राइट? बोल सकते हैं ना? सो वन इक्वेशन इज दिस, है कि नहीं? वन इक्वेशन इज दिस, बोल सकते हैं। तो सी, वन इक्वेशन 2 की पावर इक्वेट करना एंड अनदर इक्वेशन 3 की पावर इक्वेट करना। तो 2 equations and 2 unknowns, you will get the value of m and n. Yes or no? You'll get the value of m and n. Yes, we'll get the value of m and n, right? So answer is m equal to -12. बाकी तुम अपने आप से कर सकते हो, right? बाकी तुम अपने आप से कर सकते हो। Yes. So we'll go for one more question based on logarithm, right? And one more at the end for the quadratic. लगाओ दिमाग लगाओ। Yes. Can you go for it? Yes, you can go for it. See, हमको क्या पता है? X and Y are the real, then X Y का value. So see, this is also 5 and this is also 5. दोनों एडिशन में है तो सब मल्टीप्लिकेशन ला सकते हैं। So log 5 x plus y into x minus y क्या हो गया? x square minus y square equal to 3। ये 5 जाएगा इसकी पावर में, तो x square minus y square equal to 5 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 125। दूसरा, इधर से ये सब डिवीजन में, राइट? तो log
टू कितना हो गया y बाय एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी टू है तो इसको मैंने लिख दिया log टू चलेगा। सो अगेन इट इज log टू, ये टू तो ये 2/3 हो गया सब्ट्रैक्शन में, तो दे कैन से दैट ये y बाय एक्स इक्वल टू 2/3, और वी कैन से दैट है ना y बाय एक्स इक्वल टू 2/3, और वी कैन से दैट कि यहाँ से कितना आ गया y इक्वल टू कितना आ गया 2/3x, ठीक है तो इसमें डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 दैट इज 4, 4/9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 125, तो कितना आ गया 5x² बाय 9 इक्वल टू 125, तो गया 25 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 × 9, तो अंडर रूट जाएगा तो डेट इज 5 × 3 डेट इज 15, है कि नहीं, दैट इज 15, तो मतलब अब जो भी आएगा 15 का मल्टीपल होगा x इंटू वाई समथिंग, 15 का मल्टीपल मुझे कौन दिख रहा है क्वेश्चन में बताओ, एक ही तो दिख रहा है, अब y का वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करने का है ना, x इंटू वाई करना है, तो जो भी आएगा 15 इंटू ही होगा ना, मतलब 15 का मल्टीपल होगा। एंड यस वन मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन, इस पे बेस्ड है ये मॉडुलस क्वेश्चन है ना, मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस। यस मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस, लगाओ दिमाग फटाफट से। सही है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब क्या कि x के जो रूट्स आएंगे उसका हमको प्रोडक्ट निकालना है। सो बताओ मॉडुलस एक बार प्लस होगा है ना, एक बार मॉड पॉजिटिव होगा, एंड एक बार मॉड नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मतलब कि -x² प्लस एक्स एंड प्लस सिक्स, सबकी साइन चेंज हो गई ना, x+2, ठीक है, तो कितना हो गया x², ये इधर गया तो -2x एंड -8 इक्वल टू 0, ये एक्स एक्स तोड़ गया, सो -x² इक्वल टू कितना हो गया -4, दैट मीन्स कि x² इक्वल टू 4 है ना, बताओ बोल सकते हैं ना, तो दैट मीन्स कि x² इक्वल टू 4 राइट, बोल सकते हैं ना, है ना, -x², दिस गॉन राइट, देन x² इक्वल टू 4, क्लियर, ओके। और यहाँ से कितना आ जाएगा x² -2x -8, तो इसके वेक्टर्स कितने हो गए x इक्वल टू 4 -2, इधर से कितना हो जाएगा x इक्वल टू +-2, +-2 तो डिस्टिंक्ट हमको लेना है, लेकिन हमको क्या लेना है, डिस्टिंक्ट तो लेना है हमको, क्लियर, यस और नो बताओ, यस और नो, डन। तो डिस्टिंक्ट कितना कितना है, 4 इज डिस्टिंक्ट, -2 इज डिस्टिंक्ट एंड +2 इज डिस्टिंक्ट, क्लियर है कि नहीं, -2 दूसरी बार नहीं लेंगे हम लोग, डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब अलग अलग रूट्स, तो कितना हो गया 4 2 8, 8 2 16 एंड इट्स -16, राइट, very simple question, done। So this is how the 2019 slot 1 looked like. So what do you think that if you would have given the exam in 2019 slot 1, how many marks could you score in your CAT 2019 papers? Yes, just comment box में जरूर बताना, we'll wait for your answers, and till then we'll see you with one more video for 2020, and have a good day till then.